آج یہ شخص رو رہا ہے. میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ خدا کے لیے ایک بار مدد کر دیں. 6 زندگیاں بچا سکتے ہیں. میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کا بھی نہیں ہے، تو اس واسطے خرچہ ہے. اس وقت بھی خرچہ ہو چکا ہے اور اتنا خرچہ چاہیے. 4 معصوم بچوں کا یہ باپ آج آپ لوگوں سے التجا کر رہا ہے کہ 7 لاکھ کا خرچہ ہے. یہاں پر آ کے دیکھیں، نور عالم کے گھر میں پہنچیں، خود آپ پر انویسٹیگیشن کریں. آپ بھی روئیں گے اس کے گھر کے حالات دیکھ کر. میں یہ یقین سے کہتا ہوں، خدا کے لیے ایک بار مدد کر کے دیکھیں، شاید آپ 6 زندگیاں بچا سکتے ہیں. میرے بہن بھائی جو ماں باپ سب سن رہے ہیں، ان کو یہی میں چاہتا ہوں، چلو میرا اگر جان بچے گا، میرا بال بچہ چھوٹا، چلو ان کی دعا کے لیے جو مدد کریں گے ان کے لیے آپ جو مدد کر سکتے ہیں کرو، جو توفیق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اپنے لیے جینا بھی کوئی جینا ہے، دل چاہتا ہے زندہ رہوں آپ کے لیے. آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں جس کو سننے اور دیکھنے کے بعد آپ بھی خون کے آنسو روئیں گے. 4 بچوں کا باپ آپ سے التجا کر رہا ہے. ایک غریب پریوار سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان جو محنت مزدوری کر رہا تھا اور ایک حادثے میں اپنے پاؤں کو جو ہے وہ کھو جاتا ہے. کہیں نہ کہیں وہ پاؤں اس کا جو زخمی ہوتا ہے، اور وہ شخص جو ہے وہ نور عالم سن آف محمد اکبر آرو بنگائی تحصیل تھنا منڈی کا یہ شخص. یہ پاؤں آپ دیکھیں، یہ شخص میرے ساتھ ہے اور یہ اس کا پاؤں ہے جو محنت مزدوری کرتے ہوئے یہ زخمی ہوتا ہے. اور پھر یکے بعد دیگر اس کے 6 آپریشن ہوتے ہیں. راجوری جی ایم سی سے لے کر سری نگر کے سورا انسٹیٹیوٹ میں بات کریں تو وہاں پر بھی آپریشن ہوئے، سب کچھ ہوا. گولڈن کارڈ کی وہ جو اس میں جو ایک میعاد تھی وہ بھی ختم ہو گئی. اور یہاں تک پہنچ گیا معاملہ کہ اس شخص نے جو ہے وہ قرضہ لیا اور کہیں نہ کہیں انٹرسٹ پہ پیسہ بھی لیا اپنی بیماری کا علاج کرنے کے لیے. لیکن آپ کو بتاتے چلیں، 4 بچوں کا یہ باپ کہیں نہ کہیں بزرگ ماں باپ بھی اس کے ساتھ ہیں. ان کا سہارا بننے کے بجائے یہ آج ان کے اوپر کہیں نہ کہیں یہ خود کو ان کے اوپر بوجھ محسوس کر رہا ہے. آپ کو پوری بات بتاتے ہیں کہ ہوا کیا. چند سال قبل کی بات ہے کہ یہ شخص جو نور عالم ہے، یہ محنت مزدوری کرتا ہے اور مزدوری کرتے ہوئے ایک پتھر اس کے پاؤں پر آ کر لگتا ہے. اور جب پتھر اس کے پاؤں پر لگتا ہے تو اس کے بعد اس کو فوری طور پر راجوری لے کے جاتے ہیں. جب راجوری جاتے ہیں تو وہاں پر ڈاکٹرز نے ان کو آپریشن کے لیے بتایا. آپریٹ بھی ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن اس کے بعد یہ شخص کئی سال گزر گئے، یہ ٹھیک نہیں ہوا. ہمیشہ سے اس کے پاؤں میں سے جو خون ہے وہ نکلتا رہا. آخر وجہ کیا رہی، پورا معاملہ ہم آپ کو بھی انہی کی زبانی سنائیں گے. آپ کو میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ 4 معصوم بچوں کا یہ باپ آج آپ لوگوں سے التجا کر رہا ہے کہ 7 لاکھ کا خرچہ ہے. زیادہ نہیں ہے، 7 لاکھ کا خرچہ ہے. اگر آپ 50 روپے بھی ڈالیں گے، جناب جموں کشمیر کا یہ نوجوان، جموں کشمیر کا یہ بیٹا، یہ راجوری پونچھ کا بیٹا آج آپ کے سامنے التجا کر رہا ہے کہ 7 لاکھ کا خرچہ ہے. اور یہ خرچہ اگر آپ لوگ سب مل کر ہمدردی سے یہ 7 لاکھ روپیہ اٹھاتے ہیں تو یہ صرف اس کی جان نہیں بچے گی، بلکہ 4 بچے، 2 بزرگ ماں باپ کے ساتھ ساتھ یہ پورا پریوار بچ سکتا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ کینسر پیشنٹ ہے اور اس کو ڈاکٹرز نے یہ یہاں تک بھی بتایا ہے کہ آپ کی ہڈی میں بھی کینسر ہے، آپ کے بلڈ میں بھی کینسر ہے. اللہ معاف کرے، آپ اور میں آج ٹھیک ہیں. ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس شخص کی مدد نہیں کریں گے، بلکہ اس کا فرض بنتا ہے ہم پہ، اس کا حق ہے ہم پہ، اس شخص کا حق ہے. یہ نور عالم جو ہے، اس کا حق ہے کہ ہم لوگ مل کر اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اس مشکل دور میں. آج بھی اس کے پاؤں میں سے خون نکل رہا ہے. اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد، 6 آپریشن ہونے کے بعد یہ شخص آج ٹھیک نہیں ہے. آج یہ التجا کر رہا ہے آپ سے کہ جناب 6 لاکھ 7 لاکھ کا خرچہ ہے. اس انسان کے پاس 10 روپے نہیں ہے کھانا کھانے کے لیے، تو مجھے آپ بتائیں کہ یہ علاج کیسے ہوگا. ہم آپ کو بتاتے ہیں، راجوری میں اس کے آپریشن ہوئے، سری نگر میں اس کے آپریشن ہوئے. ڈاکٹر جس کو بتاتے رہے کہ جناب آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آج یہ آپریٹ کروائیں، آج یہ آپریٹ کروائیں، یہ کرواتا رہا. اس کے بعد پھر چندی گڑھ میں اس کے 2 آپریشن ہوئے. جتنا اس کے پاس وہ 5 لاکھ کی جو مدد سرکار کی طرف سے گولڈن کارڈ کے ذریعے دی جاتی تھی وہ بھی اب ختم ہو چکی ہے. اب یہ آپ کے سامنے آیا ہے. خوددار انسان ہے، آنا نہیں چاہتا تھا آپ کے سامنے، لیکن مجبور ہے، بے بس ہے، لاچار ہے، بے کس ہے. خدا کے لیے ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے آگے کہ اس شخص کی مدد کریں. اس شخص کی زندگی کے ساتھ ساتھ
6 जिंदगियों को बचाएं। मैं आपके सामने अपील करता हूं। अब सीधे नूर आलम के पास चलेंगे, नाम जानेंगे, मामला जानेंगे, हुआ क्या, और बुजुर्ग जो इनके वालिद हैं वो रो रहे हैं। मैं आप लोगों को वो नहीं बताऊंगा कि इसके बच्चे भी रो रहे हैं, लेकिन इल्तिजा ज़रूर करूंगा, खुदा की कसम यहाँ पर आएंगे आप, बंगाई के अंदर आएँ आप यहाँ पर आके देखें, नूर आलम के घर में पहुँचें, खुद आप पर इन्वेस्टिगेशन करें, आप भी रोएंगे इसके घर के हालात देखकर। मैं ये यकीन से कहता हूँ, खुदा के लिए एक बार मदद करके देखें, शायद आप 6 जिंदगियां बचा सकते हैं। क्या कहेंगे आप? अपना नाम बताएं, पूरा मामला क्या हुआ आप बताएं। मेरा नाम नूर आलम है। मुझे लग गया था, मैं मजदूरी कर रहा था यहाँ ही गांव में किसी के पास, 2017 में लग गया था। उससे बाद मेरा सर्जरी हुआ रजौरी में, दो या श्रीनगर में, फिर भी ब्रेड नहीं रुका, ऐसे ही चलता रहा। पिछले साल अगस्त में मुझे सोरा में गया, वहाँ से मुझे बोला यहाँ इलाज किया तो हमने बहुत किया, लेकिन यहाँ हो सकता हम सर्जरी करेंगे, पाँव ठीक हो जाएगा या नहीं होएगा। कमर में भी दर्द था, मैंने कमर का लिया ही नहीं, मैं सोचता था पाँव ठीक होना चाहिए। फिर मैं गया चंडीगढ़ में मुझे जो मेरा बलादरी है, गांव वाले हैं यहाँ बंगाई के, उन्होंने मुझे मदद किया। पहले में लोगों ने बहुत मदद की है, यहाँ गाँव वालों ने, बलादरी ने, सब ने किया। जब मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ उन्होंने कोई दवाई दिया, बोला सर्जरी करना पड़ेगा, फिर किया, फिर ब्लड नहीं रुका, फिर सर्जरी किया। ये अप्रैल में, इस साल अप्रैल जो गुजर गया इसमें, फिर नहीं, फिर मुझे पाँव पूरा फट गया, ये पूरा पाँव फट गया। फिर डॉक्टर के पास गया मैं इस साल, फिर अगस्त में गया, फिर उन्होंने टेस्ट लिया, उन्होंने बोला आपको ज़्यादा प्रॉब्लम बन गया, इसको पूरा ब्लड कैंसर बन गया। फिर मैं क्या बोलूँ, मेरे ये नहीं था जी मैं मीडिया पर चढ़ूँ या और किसी जगह में चढ़ूँ। मुझे लोगों ने पहले बहुत किया, मैं डीसी साहब के पास गया, उन्होंने मदद किया, मुझे 2-3 हज़ार रुपया उन्होंने दिया। उन्होंने बोला एक फार्म लो, ये लो, दिया, उन्होंने भी मदद किया, जो देना था उन्होंने रुपया 5-6 हज़ार पहले में मदद किया, 3 हज़ार एक दफ़ा दिया, 3 एक दफ़ा दिया। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, इसलिए मैं मजदूरी करता, मुझे 400 बनता, 1000 कमाते 500 बनता, 200 बनता, मैं अपने बाल बच्चे को खिलाता। लेकिन आप मुझे बोलते हैं कमर का सर्जरी भी करना, कमर ऐसा भी नहीं हल सकता है, और पाँव का भी करना है, बोलते हैं तुमको ब्लड कैंसल हो गया। अब क्या बोलूँ, आपके यही है, मैं शुक्रगुजार हूँ सब बहन भाई को, सबको, अपनी बलादरी को, सबको, बाहर को, अगर मेरी ज़िंदगी बचा सकते हैं आप वसीला है। चलो, अगर जितना जो किसी को तौफीक है, मुझे वही 7 लाख चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, इतना खर्चा हो जाएगा, जो आपको तौफीक है वो कर दे। कितना खर्चा डॉक्टर्स ने आपको बताया है? मुझे बोला 7 लाख रुपये तक लग जाएगा कम से कम। तो आपका ऑपरेशन कब करना है, उन्होंने कब बताया? उन्होंने डेट दिया था, ये सामने 1 महीने का डेट डाला, 1 महीना गुजर गया, 2 महीने का डेट डाला था, लेकिन 1 महीना रह गया, 10-15 दिन रह गया लगभग। अभी आप क्या अपील करेंगे? ये जितनी आवाम देख रही है, अब जम्मू कश्मीर के साथ साथ बाहर से भी लोग आपको देख रहे हैं, क्या अपील करेंगे आप? क्या अपील करेंगे? मेरे पास अल्फाज नहीं है, लेकिन आप खुद ही बोलें, इन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही चाहता हूँ, जो मेरे बहन भाई, जो माँ बाप सब सुन रहे हैं, इनको यही मैं चाहता हूँ, चलो मेरा अगर जान बचेगा, मेरा बाल बच्चा छोटा, चलो इनकी दुआ के लिए जो मदद करेंगे, इनके लिए आप जो मदद कर सकते हैं करो, जो तौफीक है इंसान को। बिल्कुल, नूर आलम आज कहीं ना कहीं परेशान है, लाचार है, मजबूर है, और नूर आलम सन ऑफ मोहम्मद अकबर, इनके अकाउंट्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, J&K बैंक का अकाउंट है वो भी शेयर करेंगे, तमाम तफसील हमारे सामने है, तमाम कागजात हैं। आज ये शख्स रो रहा है, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, आप लोगों से कि खुदा के लिए एक बार मदद कर दें। 6 ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं आप, 6 ज़िंदगियाँ आपके हाथ में, अल्लाह ने वसीला बना दिया, अल्लाह ने आप लोगों को चुन लिया है। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की गयूर आवाम नूर आलम को इस परेशानी से निकालने में इसकी मदद ज़रूर करेगी, मुझे उम्मीद है। 7 लाख का खर्चा है, अकाउंट आपके साथ शेयर किए जाएंगे, स्क्रीन पे आपको अकाउंट बताए जाएंगे, पूरी तफसील है। आप मेरे पास आएँ, कश्मीर क्राउन ऑफिस में जाएं, थन्ना मंडी में मेरे पास आएँ, पूरी तफसील दूंगा मैं इसकी। ये मैं कहता हूं कि अगर एक बार इसके घर के हालात देखेंगे, मैं यकीन से कहता हूं आप लोग खाना भी नहीं खाएंगे। खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ता हूं कि इस शख्स के लिए एक बार सामने आएँ, इस शख्स के लिए मदद करें। इसके घर के हालात, कच्चे कमरे हैं 2। मैं कहता हूं ये शख्स किस तरीके से ज़िंदगी गुजारता है, मैं क्या बयान करूं।
मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा कि 6 ज़िंदगियाँ आपके हाथ में हैं। 4 बच्चे हैं, 2 इसके माँ बाप, 6 वो हैं, इसको छोड़ के 6 ज़िंदगियाँ हैं, इसकी अहलिया को छोड़ के 6 ज़िंदगियाँ आपके हाथ में हैं। अगर आप लोग मदद करेंगे तो खुदा की कसम करके कहता हूँ हज है। और ये शख्स आज मजबूर है। इतना खुददार इंसान के जो सामने नहीं आना चाहता था, वो शख्स आज मजबूर होकर आप लोगों के सामने आया। मैं यही कहूँगा कि अपने लिए जीना भी कोई जीना है, दिल चाहता है ज़िंदा रहूँ आपके लिए। ये नूर आलम की पूरी फ़ाइल, एक एक कागज़, सब कुछ है हमारे पास। आप आएँ, वेरीफाई करें, जिस तरीके से भी आप वेरीफाई करना चाहते हैं। एक बार फिर मैं अपील करूँगा आप लोगों से कि इस शख्स को बचाएं। ये शख्स ब्लड कैंसर का मरीज़ है, इसकी कमर की हड्डी में भी कैंसर है, पाँव की हड्डी में भी कैंसर है, और ये शख्स आज मजबूर है। जी, दोनों का सर्जरी, कमर में भी और पाँव का भी, दोनों का गड्ढा किया, डॉक्टर ने बोला। कोई बात नहीं, अल्लाह रहम करेगा। मैं उम्मीद रखूँगा कि आप तमाम लोग मिलकर नूर आलम के साथ साथ इंसानियत को ज़िंदा करेंगे। आज इंसानियत के ऊपर एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा, इम्तिहान है, और ख़ासकर राजौरी पुंछ की इस आवाम पे मैं वादी कश्मीर के उन लोगों से अपील करूँगा कि नूर आलम की मदद करें, खुदा के लिए नूर आलम की मदद करें। ये हज है। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिस इंसान के घर में खाना खाने के लिए नहीं है, वो शख्स आज आपके सामने, खुददार इंसान आपके सामने आया है। ये खुददार इंसान था, मेहनत मजदूरी करता था। पूरा गांव कहता है ये बात कि ये शख्स सामने नहीं आना चाहता था, लेकिन यहाँ के 2-4 नौजवानों ने ज़िद की कि जनाब अब आपको सामने आना पड़ेगा, क्योंकि ये शख्स आज मजबूर हो गया। आप भी इसके पाँव में से खून निकल रहा है, इसकी कमर, आप, मैं क्या बताऊँ, वो तस्वीरें हम नहीं बता सकते हैं। इसलिए मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग सामने आएंगे, मदद करेंगे, और इस शख्स की ज़िंदगी के साथ साथ 6 और ज़िंदगियाँ बचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम नाजरीन का कश्मीर क्राउन के साथ जुड़ने के लिए। हम अपील करता हूँ कि मेरा बच्चा के लग गई थी, और इससे आगे भी 7 लाख खर्चा कर बैठे हैं, और मेरे पास कुछ भी नहीं है, खाने का भी नहीं है। तो इस वास्ते खर्चा है, इस वक्त भी खर्चा हो चुका है, और इतना खर्चा चाहिए तो बच्चे की ज़िंदगी बसर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं जंगबाज नायब सरपंच पंगाई ऊपर। मैं आपसे ये आपके वसादत से, आपके मैं आम आवाम से ये अपील करता हूँ कि नूर आलम सना मोहम्मद अकबर, जो कि पंगाई ऊपर पंचायत के रहने वाले हैं, नूर आलम नहायत ही गरीब इंसान है। मजदूरी करते हुए इसके पाँव को लग गई, जो कि उसने अपनी हिस्ट्री पूरी बता भी दी है। तो मैं अपील करता हूँ आम आवाम से, हर मर्द व जन, छोटे बड़े जवान बुज़ुर्ग से, कि उसकी जिस कदर हो सके उसकी मदद की जाए। उसका इससे पहले जो खर्चा हुआ उसमें उसका गोल्डन कार्ड का जितना पैसा था वो भी ख़त्म हो गया। बाकी लोगों से जो उसने उधार भी उठाया, लोगों ने प्राइवेटली अपने लेवल पे भी उसकी बड़ी मदद की है, मगर अब वो बेबस है, इसीलिए वो मीडिया के सामने आया, जबकि वो आज तक नहीं आया। जब तक उसका काम चलता रहा वो नहीं आया, मगर आज 7वां ऑपरेशन उसका जो है वो चंडीगढ़ में होना है, और 7 लाख प्लस उसका ख़र्चा है। जबकि उसका किराया खर्चा, जो उसका वो कमरा है उसको छोड़ के, गाड़ी का किराया को छोड़ के, सिर्फ जो हॉस्पिटल का उसके इलाज पे ख़र्चा आना है। सर, इसके माँ बाप बुज़ुर्ग दोनों याद हैं, जबकि बाप की पिछले साल टांग टूट गई थी, वो माजूर हैं, किसी काम के नहीं, और हैं भी 80 प्लस हैं, किसी काम के नहीं हैं। उसके बाद माँ भी बुज़ुर्ग है, बीमार भी रहती है, और 4 बच्चे हैं, उसकी बीवी है और खुद है। टोटल घर के खाने वाले 6 लोग हैं, 8 लोग हैं, और 8 में से सिर्फ यही कमाने वाला था, जो पिछले 7 सालों से बेड पे पड़ा है और बिल्कुल बेसहारा है। अल्लाह के सिवा इसका कोई सहारा नहीं। लिहाजा मैं आम आवाम से अपील करता हूँ कि इसकी मदद करें, ताकि इसकी ज़िंदगी सफल हो, इसकी ज़िंदगी बच सके और